My dear management students, I hope all of you safe and stay at home. I am also safe and stay at home. I hope all of you are very well and doing very well by the mercy of God. I wish you best future ahead. I wish you excellent success as well as excellent health in forthcoming future. All of you are going to be a management professional. It is the best of all. I want to give you something else, something tips for better management professional in forthcoming future. Your behavior should be good. Your sanskar should be good. Your personality should be good. But his type of behavior, but his type of personality should be good. I want to share with you. I am going to share with you about sanskar, about behavior, about personality development. I am particularly advocating about personality development. Personality development comprises of two words, personality and development. Personality means persona, and persona means mask. Persona is the Greek root word of personality. In olden era, in Greek, persons used to wear mask and present themselves in drama according to eligibility. Then it is external concept of personality. Today also doctor, engineer, knotting the tie, wearing full pant, shirt and coat and lacing the shoe, they are saying that I am professional, but it is external concept of personality. Personality comprises of two types, external concept of personality and internal concept of personality. But I want to emphasize over internal concept of personality. Internal concept of personality is better than external concept of personality. External concept of personality is natural. External concept of personality is artificial, and internal concept of personality is natural. But question arises under this discussion that what is internal concept of personality? Your soul is pure, then your mind will be pure. Your mind will be pure, then your intellect will be pure. Your intellect will be pure, then your attitude will be pure. Your attitude will be pure, then your altitude will be high. And your personality automatic will be groomed, and person will bow down their head to your feet. Then you will not be called as a good man, good citizen, or you will be called as extra concept of personality like Jupros, and person will bow down their head to your feet. तो जो भी मैंने कहा ये हिंदी इंग्लिश में मैंने कहा, मैं हिंदी में भी आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। पर्सनालिटी वर्ड जो है परसोना शब्द से बना है। परसोना का मतलब होता है मास्क, और ग्रीक में लोग ड्रामा के टाइम में एलिजिबिलिटी के अनुसार, पात्रता के अनुसार मास्क पहन करके लोग ड्रामा में भाग लेते थे, यानी अपना पर्सनालिटी को चेंज करते थे। आज वही चीज़ हमारे समाज में हो रहा है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, अपना कोट पैंट टाई लगा करके सोचते हैं एक्सटर्नल कंसेप्ट बना करके, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी के तहत उन लोग सोचते हैं आर्टिफिशियल बन करके
आर्टिफिशियली जो है सो अपने भेषभूषा को बदल करके अपने आप को सोचते हैं कि हम बदल दिया अपने आप को, लेकिन उनके पास वो जो ज्ञान जो होना चाहिए, अगर डॉक्टर है, अगर वो आला लगा लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, कोट पहन लिया, टाई पहन लिया और उसके पास नॉलेज ही नहीं है, MBBS की डिग्री ही नहीं है, तो क्या डॉक्टर कहलाएंगे? क्या उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी? उनकी पर्सनालिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती, उनका पर्सनालिटी वर्स्ट हो जाएगा, उनका प्रचार गलत हो जाएगा। या डॉक्टर ही नहीं, इंजीनियर के ही संबंध में मैं बता रहा हूँ, या किसी भी प्रोफेशनल को अगर उनके पास अगर योग्यता नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो भीतर से उनका सोल प्योर नहीं होगा, तो उनका मन भी शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो उनकी बुद्धि भी सहज नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। बुद्धि अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं होगी। प्रवृत्ति अगर अच्छी नहीं होगी तो उनका आयाम कैसे विस्तृत होगा? आयाम उसी का विस्तृत हो सकता है जिनका माइंड, जिनका सोल प्योर होगा, माइंड प्योर होगा, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि प्योर होगी, तब उनकी प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी। प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी तो उनको परसेप्शन हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि हम एक अच्छा मैन हैं, उनको कि हम ऐसा हमको करना चाहिए, बौद्धित्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो उनका आयाम विस्तृत हो जाता है। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे साधुओं का, ऋषियों का, मुनियों का 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक जो है आयाम विस्तृत होता था, और जो भी उनके कंसल्ट में आते थे, जो भी उनके क्षेत्र में आते थे, वो उनसे आकर्षित हो जाते थे। तो वो क्या पैंट शर्ट और कोट पहन करके किसी को आकर्षित करते थे? नहीं, उनके अंदर की आभा, उनके अंदर का सोल इतना प्योर था, उतना उनका सोल हीलिंग प्योर था कि वो उनके संपर्क में आते ही लोग जो है सो आकर्षित हो जाते थे। तो आप इस तरह से अगर आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपका मन शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपकी प्रवृत्ति शुद्ध होगी, आपका प्रवृत्ति जब शुद्ध होगी तो आप में एक बौद्धित्व की प्राप्ति हो जाएगी। बौद्धित्व की प्राप्ति अगर होगी तो उसके बाद आयाम विस्तृत हो जाएगा, और अगर आयाम विस्तृत हो गया तो आप का व्यक्तित्व में निखार आएगा, पर्सनालिटी विल बी ग्रोम्ड, और आप एक साधारण आदमी नहीं, आप एक साधारण नागरिक नहीं, आप एक महान आदमियों की श्रेणी में आप आ जाएंगे, और आप युग युगांतर तक आपका जय जयकारा लगेगा, और आप हर समय के लिए आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये है अंदर की बात, ये है जड़ की बात। तो एक्सटर्नल कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी रोटेट्स ऑन द पाइवोट ऑफ इंटरनल कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से दैट योर इंटरनल कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी शुड बी best, then you will achieve the result. I can say with 100% confidence, you are a future manager, and you should adopt this mantra whatever I am advocating today. आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, आपका संस्कार भी अच्छा हो जाएगा, और आपकी पर्सनालिटी भी, व्यक्तित्व में भी निखार आ जाएगा, और आप एक अच्छे पुरुष कहलाएंगे, एक आप अच्छे मैनेजर कहलाएंगे। अब आपकी बात को भी लोग सुनेंगे, अब आपके प्रति अट्रैक्टिव भी होंगे, आपके अंडर काम करने वाले वर्कर भी खुश होंगे, और आपके अंदर जितने भी वर्कर होंगे आपसे आकर्षित रहेंगे, और आपका मैनेजमेंट भी बहुत सुंदर होगा। तो सीधे सीधे जो है सो आपका बात लोग मानेंगे। तो निश्चित है कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और एक यूनिटी में लोग काम करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, इम्प्रेस होंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।